Hello everyone, I am Satyam Gandhi. I secured All India Rank 10 in UPSC Civil Services Exam 2020. While paper attempting and revisions are intrinsic part of the Civil Services examination preparation, what matters most is what is our temperament and strategy on the D-Day and a week before that. So I am here to explain what worked for me and what did not. Are you ready? Let's rewind to the exam day. So let's talk about the night before the exam. I will divide my strategy in two parts, the prelims and mains. So अगर prelims की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए ये थी कि मैं दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा था, but my center was in Patna. So one day before examination, I went to Patna. I stayed in a hotel. I couldn't sleep, and that affected my prelims and the CSAT preparation. So what I felt was that I revised a lot before my night, particularly the history part, because history needs multiple revision. And static part जो होता है history का, particularly art and culture, I would suggest you to revise a day before examination, a night before examination, so that वो जो है वो आपके mind में refresh हो जाए. और सबसे पहली चीज़ ये है कि you do not have to become anxious, because if you are becoming anxious, that will impact your examination performance. So prelims के पहले just be cool, revise only those parts in which you are weak, particularly like history, and then go with a free mind in the examination. What you have to do in examination is that you have to be natural. You must attempt 100 to 120 mocks for prelims, and then you just have to replicate the performance of the mocks in your real exam. And now I will talk about the mains exam. So a night before examination was is still memorable for me, because mains का इतना प्रेशर होता है कि नींद खाना पीना आप सब भूल जाते हो. तो मेरे साथ भी यही हुआ था. मुझे भी सिर्फ 4-5 घंटे की नींद आई थी. I still remember the first paper was essay. And what happened is that I revised all the quotes, all the facts and figures that were necessary to write in essay examination, and I made very short notes for the essay paper 2. So आप सबको पता है कि एग्जामिनेशन के एक रात पहले आप 8 घंटे तो बिल्कुल सो नहीं सकते, तो आप कोशिश करें कि 5 से 6 घंटे आप ज़रूर नींद लें, ताकि एटलीस्ट जो आपका जो प्रीलिम्स होगा या जो भी पेपर है एटलीस्ट वो आप कूल माइंड से दे सके. अदरवाइज यू विल नॉट बी अटेंटिव, और अगर आप अटेंटिव नहीं है देन श्योरली यू वोंट बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. सो जस्ट बी कूल, डोंट लूज योर टेम्परामेंट ड्यूरिंग द एग्जाम, एंड द नाइट बिफोर एग्जाम आई थिंक दैट यू विल एस इट. So let's talk about the morning before the exam. So on the exam day in the morning, I was very anxious, to be honest, because the examination pressure is definitely huge, particularly the mains part. So now I will talk in two parts, the prelims and mains. तो सबसे पहले तो prelims में I was in Patna. I was staying in a hotel, and my examination center was around 10 minutes away from my hotel. So what I did that मेरी नींद बहुत जल्दी टूट गई. I slept at around 2 a.m. in the morning and woke up around 6 to 7 a.m. in the morning, just 5 to 6 hours of sleep. And my examination was scheduled for 9 or 10 a.m. So what I did was that first of all I revised my history, because I know my history is very weak, my art and culture is weak. Then after revising history, मैंने breakfast किया definitely, because you do not have to miss on the breakfast. Otherwise आपका पूरा दिन बेकार जाएगा. You won't feel energetic during the examination day. And then after doing breakfast, what you have to do is that just take some energy drink. If you are not comfortable with energy, you can eat dark chocolate. That will provide you instant energy. And it is most essential to remain attentive during the examination. Because prelims में क्या होता है कि जहाँ तक मेरा मानना है, prelims question paper is becoming very difficult. And if you are not attentive, you won't be able to solve all 100 questions in 2 hours. So मैंने breakfast किया, and then I reached to the center and everything was fine. Now I will talk about the mains examination. Definitely I couldn't sleep properly before the mains. But something unpredictable happened to me in the morning before the essay paper that was scheduled on 7th of I guess January. So एक रात पहले मेरे पापा ने फ़ोन किया and he reminded me to keep my Aadhaar card into my wallet. मैंने कहा हाँ वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हो जाएगा. But in the morning when I looked my Aadhaar card in my wallet, I couldn't find that, and that made me fully anxious. और फिर मैंने आधार कार्ड खोजा, but वो कहीं भी रूम में नहीं मिला. I was like, that was a cold winter of Delhi, and it was like 8 a.m. or 8:30. I had to report to the examination center anyhow by 9:30 or by 8:30, and that was in the 7:30. So I was panicking in the 7:30 in the morning that what would I do now. But I did lose temper, but again I downloaded my Aadhaar card through DigiLocker, but again next challenge was how to get the printout of the Aadhaar card, because every shop in the morning, it was a foggy morning,
and every shop was closed. I even called to the phone number of several shopkeepers, but they denied कि इतनी जल्दी कोई उठ भी नहीं सकता. So what I did that I did not carry Aadhaar card to my examination center. I had a digital format, it was in my phone, and I prayed to God कि हे भगवान किसी तरीके से मुझे एंट्री मिल जाए, किसी तरीके से जो एग्जामिनर हैं वो मेरे डिजिटल आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर लें. बट फॉर्चुनेटली दे वर वेरी कोर्डियल एंड दे एक्सेप्टेड माई डिजिटल आधार कार्ड एंड देन आई गिव द एग्जाम. सो सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि डू नॉट लीव एनी डॉक्यूमेंट बिहाइंड, बिकॉज एग्जामिनेशन डे पे आप किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. सो जो मिस्टेक मैंने करी कि मैंने बहुत ही लाइटली ले लिया पापा के एडवाइस को कि सब कुछ रख लेना, ये आपको ज़रूर करना है. आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और जो भी कॉल लेटर है वो आप एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आपके पास रख लें. और इस चक्कर में सबसे बड़ा मिस्टेक ये हुआ कि वॉट एवर आई मेमोराइज्ड फॉर एसे पेपर, लाइक यू हैव टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ कोड्स, लॉट ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स फॉर एसे, मैं सब कुछ भूल गया. और इन द एग्जामिनेशन डे ड्यूरिंग माई ऑटो, इतना कोल्ड मॉर्निंग, आई प्लान टू बुक अ कैब, बट वहाँ पे तो हालत ख़राब थी, एंक्सियस था, तो कैब क्यों बुक करूँ. मैं ऑटो से ही चला गया और वो ठंड का दिन मुझे अभी भी याद है, मेरे हाथ काँप रहे थे, मैं सारे कोड्स भूल चुका था, बट स्टिल जो भी मेमोराइज रह पाए उसे मैंने ऐसे में यूज़ किया. सो यू हैव टू चेंज योर टेम्परामेंट वेरी फास्ट, बिकॉज आप एक घंटे पहले काफ़ी नर्वस, काफ़ी एंक्सियस होते हो, बट देन अगेन यू हैव टू कम इन योर नेचुरल मैनर, अदरवाइज दैट वुड बी डिफिकल्ट. सो दिस वॉज मॉर्निंग बिफोर माई प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीचिंग टू द सेंटर. सो ये भी मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल रहा. तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं. तो प्रीलिम्स का मेरा सेंटर था पटना में, एंड वहाँ पे जब मैं गया तो लोग ग्रुप्स में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं, पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एंड आई वाज इन अ लोअर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर. सो मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था. और वहाँ पे सिंस आई वाज एट दैट मोमेंट 21 years old, सो मैं वहाँ पे काफ़ी बच्चा टाइप का भी लग रहा था. देन अगेन इट वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी, बट दैट शुड नॉट मैटर टू एनी वन हु इज़ गोइंग टू अपीयर फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम. You are different. See, everyone in this examination is different. Everyone has its own quality. You do not have to worry about it. और लोग ग्रुप में आ रहे हैं, आप इंडिविजुअल आ रहे हैं, इसके बारे में बिल्कुल टेंशन ना लें. आप एकदम कूल माइंड रहें. यू जस्ट, मैंने क्या किया था, मैंने बस पानी की बॉटल थी मेरे पास, मैं पानी पी रहा था. यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, एंड देन आई बॉट सम चॉकलेट्स टू मेंटेन माई एनर्जी लेवल. So that is what I did. And when I entered into the examination hall, first of all I searched my roll number, and it was a easy process because जो भी examiners होते हैं वो इस process को काफ़ी easy going बना देते हैं. And if I talk about the mains, my main center was in the South Avenue area of Lutyens Zone. So it was a pretty posh area, and I did not have to face any kind of issues reaching there, except in the essay paper when I already told you what happened to me. और मैंने एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढे, मेरे पास बहुत सारे लोग थे, बाकी नोट्स के लोग रट्टा मार रहे हैं पूरा छोटे छोटे नोट्स बना के. और ऑनेस्टली आई वाज आल्सो डूइंग दैट बिकॉज नो वन वांट्स टू टेक द चांस टू कि ऐसा कुछ ख़राब हो जाए. सो मैं भी नोट्स का एकदम मेमोराइज कर रहा था सब कुछ. बाकी लोग भी कर रहे हैं, कॉर्नर में बैठ के, कोई नीचे बैठा है, कोई झाड़ियों में बैठा है, कोई एकदम कोने में जाके बैठा है. तो मैं भी इसी तरीके से कोने में बैठ के रिवाइज कर रहा था. And 30 minutes before the examination, I entered into the room. And one thing I also want to mention that in the optional paper of PSIR, because seating arrangement change होती रहती है. In optional you are seated different, in mains paper you are at a different place. So optional में क्या हुआ, that was the cold morning, 9 बजे मेरा पेपर था, और मेरी जो अटेंडेंस की रोल नंबर थी वो ठीक मेरे गेट के बगल में बैठ गई. तो हुआ ये कि गेट हमेशा ओपन रहता था, वहाँ से एकदम फॉगी हवाएं चल रही हैं और मेरी हाथ जम रही है, बट फिर भी मैं, और ऑप्शनल में यू हैव टू राइट वेरी फास्ट टू कंप्लीट द पेपर, बट स्टिल यू हैव टू डू इट. इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आपको कुछ करना है तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेज. सो जस्ट एक्ट नेचुरल. बहुत सारी आपके पास डिफिकल्टीज आएंगी. वॉट मैटर्स इज हाउ यू हैंडल इट. डू नॉट पैनिक, बिकॉज अगर आप पैनिक हुए देन इट विल बी बैड फॉर द परफॉर्मेंस. So do not panic, remain calm, and whatever you have prepared, try to produce that in the original exam. So this is what happened in the morning of the exam, or to the reaching to the center. So let's talk about what happened when the examiner gave me the question paper. सबसे पहले तो आप जब बैठ जाते हो तो आपके एडमिट कार्ड्स चेक होते हैं. तो आई वॉज वेरी एंक्सियस, आई वॉज लुकिंग कहाँ है क्वेश्चन पेपर, बंडल दिख नहीं रहा है. तो जब क्वेश्चन पेपर आया एंड जब वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ तब मेरे मन में यही आ रहा था कि ये आ गया मौत का पैगाम. मतलब यही है जो है, ये मेरी 2.5 साल, 1 साल, 1.5 साल की मेहनत का जितना भी नतीजा है वो यही तय करेगा.
तो सबसे पहले सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाकी लोग तो उस पर सील लगा होता है, बट बाकी लोग नीचे से उठा के देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ताकि पहले मैं माइंड में मेकअप कर लूँ कि मुझे क्या लिखना है। बट मैंने ये चीज़ नहीं की, क्योंकि यू हैव टू रिमेन काम। अदरवाइज अगर आप पकड़े जाते हैं तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, you will be disqualified for this examination. So जब भी आपको पेपर आए, you just remain calm, भगवान का नाम लेते रहो, सब कुछ अच्छा होगा. Do not worry, do not get anxious and wait for your turn. So that's it. So let's talk about the situation when I got the paper. So सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स पेपर 1 की. तो जब मुझे प्रीलिम्स का पेपर 1 मिला तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक इन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, बिकॉज जितने भी इन्वायरमेंट के जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, विच इज़ माई वीक एरिया, दे वर इन स्टार्टिंग ओनली. लाइक आई स्टिल रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 1 वॉज फ्रॉम हिस्ट्री, एंड जो मैंने उसे आंसर किया वो गलत हो गया. एंड इन द रेस्ट ऑफ द 9 क्वेश्चन आई लेफ्ट कि नहीं, अब मुझे गलत नहीं करना, ये तुक्के मारने से कुछ नहीं होगा. सो वॉट यू हैव टू डू इज़ डैट कि आप सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करें इन विच यू आर 100% श्योर. बिकॉज क्या होता है कि प्रीलिम्स के पेपर 1 में जीएस में कोई भी इंसान 40 क्वेश्चन से ज़्यादा करेक्टली आंसर नहीं कर पाता है. तो फर्स्ट राउंड में यू हैव टू सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चंस इन विच यू आर श्योर, एंड देन मार्क द क्वेश्चंस जो जिसमें भी आपको डाउट है और यू थिंक दैट मैं इसे सब्सिक्वेंट राउंड में सॉल्व करूंगा, यू जस्ट हैव टू इनसर्कल द क्वेश्चन. तो मैं कुछ क्वेश्चंस का बात करता हूँ जिसमें मुझे आई फेस्ड लॉट ऑफ डिफिकल्टी. देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 72 रिलेटेड टू इंडियन एलिफेंट्स. So what happened in this question is that the first statement of this question is the leader of an elephant group is a female. I had no clue about it. मैं जब जो फर्स्ट थॉट मेरे उस टाइम माइंड में आया वो ये था कि या क्या ये क्वेश्चन किसी एनिमल प्लैनेट के फोटोग्राफर या कैमरामैन ने सेट किया है. तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि बी रेडी फॉर अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस, बिकॉज वो दिन चले गए जब यूपीएससी कन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछती थे बुक से. नाउ दे आर ब्रॉडनिंग देयर होराइजन. सो आपको अनकन्वेंशनल क्वेश्चन के लिए हमेशा रेडी रहना है. तो इसी तरीके से इसका दूसरा स्टेटमेंट भी इसी तरीके का है, काफ़ी ज़्यादा ये इन डेप्थ क्वेश्चन है, एंड इसके बारे में मुझे कोई क्लू नहीं था. तो व्हाट आई डिड वाज दैट आई जस्ट इनसर्कल्ड द क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इन विच आई हैड एन आइटा ऑफ डाउट, और जो मुझे लगता था जो मैं बाद में सॉल्व करूँगा मैं उसे इनसर्कल कर लेता था, और उसके बाद मैं उन्हीं क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करता था जिसके बारे में 100% श्योर हूँ. मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसके बारे में आप 100% ही श्योर हैं. अब ये आता है 25th नंबर ऑफ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज डैट कि हुंडी पोस्ट हर्षा पीरियड यानी मिडिवल टाइम में हुंडी किसे कहा जाता था. तो इसमें यह है कि डिफरेंट ऑप्शंस है डैट हुंडी इज जनरली रिफर टू इन अ सोर्स ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड. Now this question is directly from the medieval India NCERT. I mean अगर आपने thoroughly उस किताब को पढ़ा होगा तो it is very clearly mentioned. So what you have to do is that कि जो sources हैं कुछ काफ़ी, for example लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो वो सब सोर्सेज medieval इंडिया medieval हिस्ट्री के लिए, तो वो सब सोर्सेज बाइबल गीता जो भी कह लें आप उसको, उस तरीके से उसको आपको मिस नहीं करना है. तो दिस क्वेश्चन वॉज डायरेक्टली फ्रॉम दैट बुक. सो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको उस एग्जामिनेशन टाइम में पहले सॉल्व करने हैं. डू नॉट बी इन अ हरी. आपको ये करना है, राउंड वाइज पेपर सॉल्व करना है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, एंड विद सब्सिक्वेंट राउंड आपको उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आप जानते हैं. अब एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 32. मैंने जो स्पेक्ट्रम किताब है मॉडर्न हिस्ट्री को, उसको कम से कम 15 बार पढ़ा था मैंने, और आई वॉज फुल्ली कॉन्फिडेंट कि स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में तो गलती नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल सॉल्व करना है. पर जब 32 नंबर क्वेश्चन मैंने देखा तब मेरा सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया. ये क्या क्वेश्चन है? जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द लखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवोल्ट राउंड. मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी लखमाबाई केसेस के बारे में नहीं सुना था. इनफैक्ट इन माई ग्रेजुएशन डेज आई हैड अ पेपर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, बट उसमें भी ये नहीं था. मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा, उसमें भी ये नहीं था. मैंने 120 मॉक्स सॉल्व किए, मैंने उसके सारे सॉल्यूशंस को 4-5 बार रिवाइज किया. आई नेवर हर्ड अबाउट लखमाबाई केस. सो बी रेडी फॉर अनकन्वेंशनल क्वेश्चन, डू नॉट लूज योर टेम्पर. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी होते हैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में. तो पहले उन सवालों को सॉल्व करें. इन क्वेश्चंस को या तो आप छोड़ दें या फिर बोले कि भाई मुझसे दूर रहे, और उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करें जिसमें आप सफिशिएंटली नॉलेज हो आपकी. तो दिस इज व्हाट वाज माय टेम्परामेंट व्हेन आई गॉट द क्वेश्चन पेपर. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन मेंस पेपर. सो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि GS1 का जो पेपर है, इन विच देयर इज़ हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एंड सोसाइटी,
इस पेपर से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था। वाई? बिकॉज हिस्ट्री इज़ माई वीक एरिया, आई शुड एक्सेप्ट दैट। और मैंने इस पेपर के लिए एक भी मॉक नहीं लिखा था GS मेंस के लिए। सो आई वॉज लाइक प्रेइंग टू गॉड कि भाई क्वेश्चन ईजी आना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री इज पार्ट ऑफ दिस GS1 पेपर। एंड मैंने उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, बिकॉज पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चंस कम आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, उसके लास्ट ईयर नहीं आया था, उसके लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। सो आई वाज प्रेइंग कि भाई क्वेश्चन ना आए, और अगर आएगा तो देख लिया जाएगा, एक क्वेश्चन में कुछ भी लिख देंगे, क्या जा रहा है। तो जब मेरे पास पेपर आया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डिड कि मैंने पेपर स्कैन किया कि वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन है या नहीं। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि एक भी क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं आया। एंड सिमिलरली इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, उससे भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो आई वॉज ग्लैड कि चलो यार, सबसे बड़ा हेडेक खत्म हुआ। बट उसके बाद जब मैंने पेपर्स पढ़ना शुरू किए, तब पता चला नहीं, हेडेक इसमें भी है। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज अ क्वेश्चन लाइक पर्शियन लिटरेचर सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज कमेंट। अब इसमें सबसे पहले तो आप मिडिवल इंडिया क्या है, एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है, और उसमें भी इससे पूछा गया पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज। आई हैड नो क्ल्यू अबाउट इट। मिडिवल इंडिया से मुझे बस 3 किताबों के नाम याद थे, एंड मुझे ये भी नहीं पता था कि वो हिंदी में है, वो संस्कृत में है, वो पर्शियन में है, वो अरेबिक में है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ये थी कि ये 15 नंबर का क्वेश्चन था, यानी यू विल गेट 3 पेजेस टू राइट द आंसर। सो व्हाट आई डिड कि जो भी मेरे पास नॉलेज थी 3 किताबों के बारे में, मेरे पास उसके नाम पता थे, वो उसे किसने लिखा है और उसका जनरल ओवरव्यू। सो मैंने एक पेज में एक किताब का नाम लिखा, मैंने दूसरे पेज में दूसरे किताब और तीसरे पेज में तीसरे किताब, बिकॉज यू हैव टू फिल शीट्स इन UPSC मेंस आंसर। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव इवन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर, मतलब भरा होना चाहिए मेरा। आई स्टिल रिमेंबर 56 पेजेस थे उस बुकलेट में। मैंने पेज 1 से पेज 56 शुरू से एंड तक उसे भरा था, चाहे कुछ भी लिख के भरे, मतलब कुछ भी इन द सेंस यू हैव टू राइट कंटेंट, बट जिसमें आपको कंटेंट नहीं है यू हैव टू फिल। सो लेट्स अनदर टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट कोविड पैंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया कमेंट। दिस वाज द ईजीएस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ओनली 10 मार्क क्वेश्चन दैट you will have to fill 2 pages। एंड कोविड-19 पैंडेमिक उस टाइम काफ़ी करंट अफेयर्स में था। सो एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो डू नॉट इग्नोर करंट अफेयर्स एट एनी कॉस्ट, बिकॉज करंट अफेयर्स इज नाउ अ पार्ट ऑफ GS1। पहले कहा जाता था कि करंट अफेयर्स GS2 और GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है, बट नो, पैंडेमिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो करंट अफेयर्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, आप काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रेशर देना है। देन वन मोर क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 7। So now when this question came that iron and steel industries, so what I did कि मैंने इसके previous year questions करे थे। UPSC में क्या होता है कि they tend to repeat questions, वो बस क्या करेंगे, wordings change कर देंगे, but in history, in geography or in static areas they often repeat questions. So you must have to go through previous year papers at least 20 years। आप आज से 20 साल पहले तक का जितने पेपर्स हैं मेंस के, उसके क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशंस को पढ़ें। यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन आंसर्स फ्रॉम दोज सॉल्यूशंस, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस ईयर। आई कैन नॉट रिमेंबर, बट 6-7 साल पहले एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और यू कैन नॉट बी मोर लकी देन डैट कि आपने वो क्वेश्चन पहले से कर रखा है। इट इज़ लाइक कि आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, लॉर्ड कर्जन और उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट। ये क्वेश्चन बताता है कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव गोन थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ GS1, तो UPSC एक हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है कि वायसरायज एंड गवर्नर जनरल्स के टेन्योर में क्या क्या वर्क्स हुए हैं, और लॉर्ड कर्जन तो उसमें से बहुत ही फेमस वायसराय रहा है। तो आप हर वायसरायज के टेन्योर में क्या क्या वर्क हुए हैं ये जरूर करें। और इनफैक्ट आई डोंट नो हाउ आई गॉट द गट फीलिंग कि लॉर्ड कर्जन बड़ा मेरे लिए लकी साबित होने वाला है। So in front of or 1 hour before the examination hall, I opened my spectrum, went through the last pages and I memorized whatever Lord Curzon did in his tenure. और जब मुझे क्वेश्चन मिला, I replicated that on the paper. So this is why it is important not to lose your temper, revise previous year questions and work hard. There is no substitute to working hard. So let's talk about finishing the paper. तो सबसे पहले जब मुझे पेपर मिला, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ पेपर्स अच्छे गए हैं, बट मेजर इशू वॉज डैट कि जो एथिक्स का पेपर था GS4, आई वॉज क्राइंग आफ्टर दैट पेपर, बिकॉज सबसे ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट GS4 के लिए था, बिकॉज एवरी वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नो that GS4 कैन मेक और ब्रेक यू, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। और मैंने इसके लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी, बट सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया जब वहाँ पे मैंने 1.5 पेज का क्वेश्चन देखा,
तो वहाँ पे मेरा हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका था, बट स्टिल आई डिड नॉट लूज माई टेम्पर, आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन, आई डिड नॉट लीव एनी क्वेश्चन इन एनी ऑफ द पेपर इन माई मेन्स एग्जाम, इवन आई वुड से आई डिड नॉट लीव एनी सिंगल शीट ऑफ द पेपर। मैंने सारे पेजेस में फ्रॉम ऊपर से लेके नीचे तक जितने पेजेस दिए हैं सबको मैंने भरा, सबको मैंने एकदम क्रिएटिव वे में आंसर लिखा। तो कॉन्फिडेंस तो था, पेपर ख़त्म होने के बाद ऐसा लग रहा था कि येस आई विल, कि मेरा मेंस ज़रूर होना चाहिए। एंड बट कॉन्फिडेंस डाउन होने का ये भी रीज़न है कि सिंस इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, सो आई डिड नॉट नो कि पेपर चेक कैसे होता है। बट अगेन इफ़ यू हैव द गट्स फीलिंग दैट हाँ पेपर अच्छा गया है, आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, देन इट विल बी गुड। और जब एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर निकले हुए बहुत लोग के चेहरे लटके हुए थे, बहुत लोग ग्रुप में खूब पार्टीज़ कर रहे थे, तो आई थॉट कि हाँ मिक्स्ड फीलिंग है कि किसी का पेपर अच्छा गया है, किसी का ख़राब। सो आई वॉज ऑल्सो द part of that crowd, and after the paper I just went to home, ate some parathas, aloo paratha, and then I just relaxed for the day. So let's talk about the final result day. So prelims and mains दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। तो प्रीलिम्स का तो मुझे पहले से आइडिया था, बिकॉज आंसर कीज मार्केट में आ ही जाते हैं डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के। सो आई वाज सिक्योरिंग वे अबव द कट ऑफ, सो आई वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट प्री क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल रिजल्ट, लाइक इंटरव्यू एंड मेंस कंबाइंड। सो आई स्टिल रिमेंबर आई कुडंट स्लीप 4 or 5 days बिफोर द फाइनल एग्जाम, क्योंकि जो हमारा एस्पिरेंट्स का टेलीग्राम ग्रुप होता है उस पर पहले ही से लोग माहौल बनाने लगते हैं कि अभी आने वाला है, अभी आने वाला है। सो मतलब पूरे टाइम मेरी नज़रें टेलीग्राम ग्रुप पे एकदम गड़ी हुई थी कि कोई रिजल्ट आएगा, PDF डाउनलोड करूँगा। और मेरा यह प्लान था कि जो 1 से 100 तक रैंक्स हैं उसमें एक एक करके सर्च करना है कि कहाँ पे है मेरा नाम, वहाँ पे रोल नंबर डायरेक्ट सर्च बॉक्स में नहीं टाइप करना है। एंड देन अगर 100 तक रैंक नहीं आया, देन आई विल टेक द हेल्प ऑफ Ctrl+F एंड माई नेम। But then again when the result came, I still remember that was around 6:10 or 6:15 in the evening. I was sitting in my room all alone, room was closed and my eyes were, मेरी आंखें पूरी तरीके से टेलीग्राम ग्रुप पे गड़ी हुई थी कि PDF UPSC जब रिलीज़ करेगा तो यहाँ ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले जब मैंने रिजल्ट देखा, आई डाउनलोडेड इट, मैंने भगवान का नाम लिया, हे भगवान किसी तरीके से कोई रैंक जरूर दिलवा देना, बिकॉज यू नो आई हैव वर्कड हार्ड फॉर 2.5 years एंड आई डिड नॉट वांट कि फिर से मुझे एक एग्जामिनेशन साइकिल से गुजरना पड़े। सो आई हैड जस्ट वन फीलिंग इन माइंड कि आई हैव टू सी माई नेम इन दिस PDF इररिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक। सो एज आई सेड कि 1 से 100 तक मुझे एक एक करके देखना था। देन आफ्टर दैट आई विल यूज द Ctrl+F, but when I went to the second page where the rank list start, I exactly saw my name on the rank 10. First of all, ये unbelievable होता है, जो भी आप देख रहे हैं, if you are going to see your name in future in this holy PDF, then you won't believe that, because मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रैंक 10 के आसपास मुझे आ सकता है। बिल्कुल इंटरव्यू और मेंस अच्छा गया था, बट रैंक 10 इज़ सम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। बट उसके बाद मैंने नाम किया कि अपना रोल नंबर देखा, डैट वाज आल्सो माइन। बट अगेन देन आई वेंट बैक, देन आई वेंट अगेन डाउनलोडेड द PDF की, हो सकता है किसी ने फेक PDF डाल दी हो, बट अगेन आई फाउंड कि हाँ ये PDF असली है। देन आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, बिकॉज मेरी फैमिली बिहार में थी और उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया था। जितने भी मेरे खर्चे हुए हैं कहीं कहीं से पैसे ला के मेरा सब कुछ हुआ है। बट देन अगेन आई कॉल्ड माई फादर, ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी इलेटेड, माई मदर वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। एंड देन अगेन मैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे रो रहा था, तो मेरे आसपास के जो भी फ्लैट्स में लोग रहते हैं वो आ गए थे। एंड देन आई सेलिब्रेटेड विद देम विद अ कप ऑफ चाय। सो आई डू नॉट बिलीव इन पार्टिंग हार्ड, आई जस्ट वेंट आउटसाइड एंड हैड अ कप ऑफ टी। सो दिस इज़ हाउ माई रिजल्ट डे वेंट। एंड उसके बाद जो कॉल्स आने का सिलसिला हुआ, अभी तक तो 10-12 दिन हो चुके हैं, बट एटलीस्ट इतने सारे दिन हो चुके हैं, बट अभी तक तो आई हैव स्टिल 100 or 200 missed calls in my phones. I still have to reply to thousands of messages that I am getting on Instagram. So life is like completely change हो जाती है फाइनल रिजल्ट के बाद। जो आपकी लाइफ थी कि दिन भर में बस एक मम्मी का कॉल आता है रात के 9:30 बजे, उसके बाद आपके पास इतने कॉल्स आएंगे कि you do not get even time to reply to everyone. So this is how I am feeling and I am happy कि जो भी मैंने हार्ड वर्क किया, जो भी मैं मेरे फैमिली ने इन्वेस्ट किया, I got the result of that. Well, this brought back many memories of my preparation days. I have already told you my strategy. Now time is to test yourself. Go and subscribe Unacademy Test Series. Use the code CTWT to get 10% discount on your subscription. Link is in the description. Now I would like to tag Apala Mishra, who secured rank 9 in Civil Service Examination 2020, to rewind to her examination day, and she will tell you what worked for her and what did not. All the best to all the aspirants. Thank you.